and penultimate shell is d subshell, then the electrons are pulled towards the nucleus and atomic size of the elements decreases. This we had seen the trend in boron, in the boron family, that is boron, aluminium, gallium, indium and thallium. The order is boron, aluminium, gallium, indium and thallium. But due to presence of 3D subshell in gallium, the atomic size of gallium decreases. The atomic size of gallium decreases and gallium is smaller than aluminium because of what? Inert pair effect. This we had studied in the last lecture. So today now we'll be studying one more new topic, and that topic is called as isomerism. I think so. We have completed isomerism. No. Today we'll be studying the new topic that is called as bond fission. The lesson number? It is lesson number 14. I had already started the chapter number 14, but as there were some new students and they were having some confusion about the electronic configuration, so I taught you all that part, electronic configuration part. I'll continue the same chapter as we have studied of chapter number 14. Chapter number 14 में क्या क्या topics पढ़ाया है मैं बता देता हूँ आपको. In the chapter number 14, one minute. The chapter number 14 we had started, and the name of the chapter was Basic Principles of Organic Chemistry. Basic Principles of Organic Chemistry. In that we had seen how to write the molecular formula, structural formula, and we had seen various types of structural formula. That is, we had seen bond line formula, dash formula, condense formula. बराबर है? ये अपन ने देखा था. Then we had seen how to draw the structures by Wedge formula, Fisher projection formula, Newman projection formula, and Sawhorse. Then we had studied classification of organic compounds. Correct? Alicyclic and open chain and closed chain compounds. Sir, we are not that we are taught. Please repeat. आपने अभी सिखाया वो टाइम पे हम लोग नहीं थे, मैं नहीं था वो टाइम पे. हाँ मैं वापस पढ़ूंगा, सारे टॉपिक्स वापस पढ़ूंगा. मुझे पता है बहुत से बच्चे अभी रिजल्ट आने के बाद ज्वाइन हुए, लेट ज्वाइन हो रहे. That is my duty. I will teach you each and every topic again. I will teach you. Yes. Okay, thank you, sir. पर मैं ऐसे बता देता हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स कवर किए एक बार, पर वापस वो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा मैं. फिर उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको होमोलोगस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप, IUPAC नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म. यहां तक अपना हो गया था. सो इफ यू आर हैविंग टेक्स्ट बुक, you can open the textbook, that is page number 221, and if there is no textbook, that's okay. I'll also not refer textbook, you also don't refer the textbook. We'll start the topic. It is textbook page number 221. The topic we are studying, let us see. Bond fission. So before I move to this topic, थोड़ा सा हम पहले bond क्या होता है वो देखते हैं. So what is bond? When two atoms are linked to each other,
then they're linked by an atom, then they're linked by a bond. We're basically familiar with two types of bonds, that it may be ionic bond. Covalent bond. Very good. Covalent bond. Yes. Ionic bond also called as, who's anybody remembers? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. Electrovalent bond. हाँ, एक आंसर राइट आया है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड करेक्ट आंसर है. या फिर इसको और क्या बोलते हैं पता है आपको? ये ढूंढ के लाना है, ये आपका होमवर्क है. आपको क्या पता करके लाना है कि इसे और क्या बोलते हैं हम लोग, किसको? आयनिक बॉन्ड. ठीक है. हाँ, हाउ इज आयनिक बॉन्ड फॉर्म? किसी ने बोला प्लस माइनस, बोलो वो. हाउ इज आयनिक बॉन्ड फॉर्म? Cations and anions. By when a cation and anion come together, then the resulting bond is called as ionic bond. तो आयन पर आया है ना, आयन का मतलब चार्ज वाला पार्टिकल. So one cation, one anion. So give and take of So give and take of electrons results in what? Formation of ionic bond. तो give and take of electrons, इसलिए इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है. Covalent bond. Covalent bond is also called, covalent bond is formed by Sharing of electrons. शेयरिंग ऑफ एटम. Sharing of electrons. sharing of electrons. Covalent bond is formed by sharing of electrons. This bond was given by person called as Lewis and another scientist called as Langmuir. लुइस लैंगमेयर ने हमको ये बताया था कि इस तरह का ये बॉन्ड होता है, and that is also called as Lewis Langmuir bond. That yes, Anjali, any doubt you are having, Anjali? सर जरा रिपीट करो ना. हाँ बोलता हूं मैं, आपका हैंड डाउन कर दो वापस. अंजलि देखो, दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक होता है आयोनिक बॉन्ड, एक होता है कोवलेंट बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड का मतलब होता है bond which is formed by donating and accepting of electrons. Electrons donate और electrons accept करता है. तो for example Na and Cl. Na के पास 11 electrons है, क्लोरीन के पास 17 electrons है. तो Na के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 electrons है. So chlorine requires 1 electron. And sodium is having 1 extra electron. So sodium donates the electron. Sodium donates the electron. तो जब ये सोडियम डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा? Na plus. Na plus Cl minus. Yes, and Cl minus. So there will be a bond formation between them. क्योंकि donate और accept हुआ ना, donate और accept हुआ है. किसकी वजह से हुआ? आयन फॉर्मेशन की वजह से. And hence the bond is called as ionic bond. या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट की वजह से हुआ है, that is also called as electrovalent bond. Okay. Now next, B. If the bond is formed by sharing of electrons. कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरे कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है. So both are having 4 electrons in outermost shell. So because of this, the octet complex, दोनों के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और octet complete हो जाता है. So bond which is formed by sharing of electrons is called as a covalent bond. Bond which is formed by sharing of electron is called as a covalent bond. Okay. Now further. Fission and second word fusion. Fission means break. Splitting into parts. Very good. Breaking into parts, or also called as cleavage. Fission means break or cleavage.
Fusion. Fusion means join. तो फ्यूजन मतलब ज्वाइन होना और फिशन मतलब ब्रेक और क्लीवेज होना. ठीक है, आगे. जिस साइंटिस्ट ने हमको कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताया, द पर्सन who gave us the information about covalent bond was Lewis Langmuir. Lewis and Langmuir मतलब दोनों अलग अलग है. Lewis and Langmuir ने हमको covalent bond का concept बताया. They explained the concept of this. That's why this bond was earlier also called as Lewis Langmuir bond. Which bond? Covalent bond. Now look here. You can see some smileys drawn. They both are same. बराबर है. These both are different. These both are same. These both are different. So they are similar. They are dissimilar. So in our science language, we call similar as homo and dissimilar as hetero. When they are similar, it is called as homo. When they are dissimilar, they are called as hetero. Okay? So if you understand this meanings, मेरा topic बहुत easy हो जाएगा. So now we are studying what? Bond fission. मतलब bond का breakup या cleavage of bond. So let's see. This much, everybody. Okay. So let us start the topic. You can see A and B. A and B. A और B है. There are two electrons between them. Two electrons between them. So this bond is a covalent bond. क्योंकि A एक इलेक्ट्रॉन लाया है, B एक इलेक्ट्रॉन लाया है. So bond between A and B is formed by sharing of electrons. Bond between A and B is formed by sharing of electrons, and this bond is called as covalent bond. Okay. Now, if I react this covalent bond in presence of sunlight, you can use sunlight the bond between A and B is a covalent bond. मैंने देखो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A bond B. तो एक बॉन्ड का मतलब कितना होता है? दो इलेक्ट्रॉन्स. एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स. इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे. You can either write down this or this. So there are two electrons. There are two electrons. Two electrons means what? One bond. Two electrons means what? One bond. So there is a covalent bond between A and B. Now we have to break this bond. To break this bond, you can use sunlight. You can use UV light. You can use high temperature. You can use sunlight, UV light, high temperature, or you can use non-polar solvent, or you can use some catalyst. Out of the 5 factors, any one factor we can use. We can use UV light, sunlight, high temperature,
non-polar solvent or catalyst. So let us see this meaning. First, non-polar. H2O. H2O is water, and you are familiar that H2O, it is H plus and OH minus. It is H plus and OH minus. The molecule in which hydrogen ions, H plus and minus ions, the molecules in which positive and negative charges are separated or can be separated is called as polar solvent. एक बार वापस, the molecules in which positive and negative charges can be separated is called as polar, and the molecule in which positive and negative charges cannot be separated are called as non-polar. Non-polar solvent. Okay. For example, CCl4. Sir, repeat non-polar solvent. नॉन पोलर बता रहा हूं. ये पोलर का मतलब क्या होता है? जब मॉलिक्यूल जिसमें प्लस और माइनस चार्ज सेपरेट कर सकते हैं वो हो गया आपका पोलर, और जिसमें प्लस और माइनस चार्जेस सेपरेट नहीं कर सकते हैं वो हो जाएगा आपका नॉन पोलर. तो ये CCl4, कार्बन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, तो दोनों में प्लस माइनस चार्ज सेपरेटेबल नहीं है. That's why this molecule is non-polar. Non-polar. Carbon, sulfur, both are non-metals. Charges separation possible नहीं है. That's why it is a non-polar. इसका नाम कार्बन टेट्रा क्लोराइड. कैसे? C को कार्बन, 4 को टेट्रा, Cl क्लोराइड. कार्बन टेट्रा क्लोराइड. सर इसका उसको कैसे करते हैं? मतलब डाई, S मतलब सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड. सर उसको सेपरेट कैसे करते हैं? They are not separable, therefore they are non-polar. CCl4 and CH2, they do not have charges separable in them, and hence they are non-polar. Clear? यहाँ पर possible है, that's why they are polar. तो हमें कौन सा solvent चाहिए यहाँ पर? Non-polar. तो हम ये वाला लेंगे compounds. Clear now? सर, नॉन-पोलर का और एक एग्जांपल दो ना. नॉन पोलर का एक और एग्जांपल दे देते हैं आपको. तो ये दो एग्जांपल समझ में आया? ये देखो और ले सकते हैं. CHCl3. CHCl3 का मतलब क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म. CHCl3 का मतलब क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म. या फिर इसको 3 बार क्लोरीन है ना, तो ट्राई क्लोरोमीथेन. ट्राई क्लोरोमीथेन और ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोरोफॉर्म. तो ये सब मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं. इनमें चार्जेस सेपरेबल नहीं है. ठीक है? तो इनमें से कोई भी एक सॉल्वेंट लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो इनके प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे. तो कैसे होगा देखते हैं यहाँ पर. Out of this 5 factors, any you can take. So now the breaking of A bond will takes place. How it will break? One electron moves towards A, one electron moves towards B. I mean, understood. Means what? Both the species, both the resulting species are having same number of electrons. मतलब इसके पास एक है तो इसके पास भी एक है. Same number of electrons है. एक हो गया. अब दूसरा देखते हैं. A और B वापस वही लिया, कोवेलेंट बॉन्ड. If the reaction is carried out in presence of polar solvent, तो इसमें इन दोनों में से जो ज्यादा electronegative, the species which is more electronegative,
वो क्या करेगा, इट विल टेक बोथ द इलेक्ट्रॉन्स। तो बी को पकड़ के चलते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है, तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास माइनस चार्ज, दूसरे वाले के पास प्लस चार्ज। सो दोनों रिएक्शन में फर्क क्या देखते हैं, ऊपर क्या हो रहा था, इन द अबव रिएक्शन बोथ द स्पीसीज आर गेटिंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट इन दिस बिलो रिएक्शन out of the two species one gets more electrons and other do not get electrons। तो यहां पर क्या हो गया, वर्ड यूज किया मैंने सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और थोड़ी देर पहले बताया था सेम का मतलब क्या होता है, होमो। और ब्रेक हो रहा है, ब्रेक का मतलब क्या हो गया, फिशन, ब्रेक का मतलब क्या हो गया, फिशन। सो दिस इज कॉल्ड एज होमो Fusion. fission। Homolytic fusion. Getting why it is called as homolytic fission? Because the cleavage of a bond takes place in such a way that each species gets the same number of electrons। ठीक है, तो प्रॉपर डेफिनेशन बताता हूं अभी। द सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब समान, इक्वल, द सिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड takes place in such a way that each resulting species has a single electron, each resulting species has a single electron, it is called as homolytic fission, or also called as homolysis। Sir, Homolytic fission or homolysis। sir, Yeah. Repeated, please. The cleavage of covalent bond takes place in such a way that more electronegative species takes the shared pair of electrons। ये बॉन्ड क्यों बना था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, तो दिस इज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो टेक्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड हेंस दिस fission is called as heterolytic fission, or it is also called heterolysis। इतना सबको समझ में आ रहा है? Everybody understood this first topic? Yes, sir. yes, sir. Very good। Yes, sir. Sir, आसान तरीके से लर्न करना वो भी बताऊंगा, पहले टॉपिक समझ में ले लो। sir, अभी दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, कोई चार्ज नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज so homolytic fission forms free radicals। they form what? free radicals, chargeless species, कोई चार्ज नहीं है, बट यहां पर चार्ज है, तो heterolytic fission forms what? ions। it forms what? ions। प्लस चार्ज वाला है तो कटायन, माइनस चार्ज वाला है तो अनायन, it forms cation and anions, ions। ठीक है, अब सर होमोलिटिक वापस पढ़ाओ ना थोड़ा, होमोलिटिक फिजन समझाओ ना। हाँ मैं समझाता हूँ, एक बार धीरे धीरे पूरा टॉपिक वापस समझाऊंगा एक बार। sir, ठीक है? heterolytic भी, हाँ heterolytic भी समझो। हाँ, I'll explain both the reactions। पहले बेसिक टर्म्स थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, रिएक्शंस पूरा वापस एक्सप्लेन करूंगा मैं, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। Okay, sir. ठीक है, तो अभी फ्री रेडिकल्स जो है, फ्री रेडिकल्स जो है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, अब पहले चार्ज वाले लेते हैं,
8 प्लस चार्ज, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, दे हैविंग लेस इलेक्ट्रॉन्स। तो प्लस चार्ज वाला है ना, चार्ज है मतलब स्टेबल नहीं है। कब स्टेबल होगा? जब ये एटम बनेगा, आयन है ना, प्लस चार्ज है मतलब। तो एटम कब बनेगा? जब ये किसी के साथ कंबाइन होगा। किसके साथ कंबाइन होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, क्योंकि ये प्लस है ना, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, लेस इलेक्ट्रॉन्स, so it will attack on electron rich centers and then become stable. After reaction, तो ये कौन सा पार्टनर ढूंढेगा? प्लस वाला माइनस ढूंढेगा, तो माइनस ढूंढने में टाइम लगेगा, दैट्स व्हाट इज अ स्लो रिएक्शन। और ये माइनस वाला कौन सा पार्टनर ढूंढेगा? प्लस वाला, तो उसको ढूंढने में टाइम लगेगा, तो स्लो रिएक्शंस। यहां पर ए और बी, they do not have any charge, they do not have any charge, so they will react with plus minus, और फ्री रेडिकल के साथ भी कम रिएक्ट कर सकते हैं, तो किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। मतलब ये क्या होगा? फास्ट रिएक्शन करेगा तुरंत। जैसे ही यहां से ब्रेक होकर सिंगल हो गया, ये फटाफट कंबाइन होने के लिए जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका लाइफ स्पैन बहुत कम है, फटाक से कंबाइन होगा, तो हाईली रिएक्टिव, ये टाइम लगाएगा, इसलिए लेस रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। एक बार वापस पूरा टॉपिक समझाते हैं, चलो ठीक है। So today's topic is what? Bond fission. So bond fission means what? Cleavage of covalent bond. We can write down bond also, but we are especially dealing with covalent. So I have written the word covalent bond. So cleavage of a covalent bond is called as bond fission. So there are two types of bond fission. So first we study is homolytic fission. First type of fission study is homolytic fission. Okay. So definition I got first. Symmetrical breaking. The symmetrical breaking of a covalent bond. The symmetrical breaking of a covalent bond in presence of UV light. Symmetrical breaking of covalent bond in presence of UV light takes place in such a way that each species, that each resulting species takes single electron. That each resulting species takes single electron, and it is also called homolysis.
free radical reaction. Or non-polar reaction. This is the definition. Okay. So homolysis में बोल सकते हैं इसको free radical reaction या फिर non-polar reaction. So let us see now here. अभी मेरे पास A और B स्पेसेस जनरल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं. A और B यहाँ पर दो डॉट दिखाया है, मतलब क्या है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है. And in this covalent bond, you will take UV light. You can take UV light. So when you take UV light, अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा. कैसे ब्रेक होगा? एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा. दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा. So what you will see here is A and B. So this are called as free radical. This was covalent. एक एग्जांपल बताता हूं, आपको फटाक से समझ में आ जाए. CH3 मतलब C2H6 ethane. When heated strongly in presence of UV light, so what will happen? एक CH3 एक इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा CH3 दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसको लिखते हो यहां पर CH3 because electrons move to the carbon. So what you will get here is CH3. Both CH3 are getting one electrons. CH3 का नाम मिथाइल. So methyl free radical. अभी समझ में आ रहा है सबको? Everybody is understanding? Still, who's having doubt, please ask. If anybody is having doubt, please ask. And y'all may note down this. सर Yes. सर आपने डेफिनेशन में लिखा है कि ये नॉन पोलर रिएक्शन है, पर कैसे होगा सर नॉन पोलर भी है? नॉन पोलर है ना, क्योंकि किसके प्रेजेंस में होता है? ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता है ना. ओके. वो अभी पॉइंट्स लिखना है, बट अभी बताया था ना आपको स्टार्टिंग में कि किसके किसके प्रेजेंस में होता है? यूवी लाइट, सनलाइट और फिर नॉन पोलर के प्रेजेंस में होता है. दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज नॉन पोलर. इसमें कोई चार्जेस नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, इसलिए नॉन पोलर. ठीक है ना? ओके. यस सर यस. CH3 में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड है ना? हाँ, ओके. तो हाइड्रोजन सिर्फ बैलेंस Yes. करने के लिए आता है. हाइड्रोजन सिर्फ बैलेंस करने आता है. प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड तो कार्बन के बीच में होता है. यस. डन सर. हर्ष, इज योर डाउट क्लियर? हर्ष बरिया, नहीं सर, नहीं समझा. क्या क्या प्रॉब्लम आपको, मुझे बोलो.
सर और एक्चुअली प्रोडक्ट में दो मिथाइल है, तो सर डाई मिथाइल या वो नहीं आएगा क्या? अरे दोनों अलग अलग हो गए ना, ये CH3 अलग अलग हो गए, प्लस में थोड़ी है। ये देखो ये कैसा है, ये एक मॉलिक्यूल है, अभी क्लीव होके अलग अलग हो गए। तो ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये सिंगल अलग अलग है दोनों। इसलिए मिथाइल मिथाइल दो बार मिथाइल अलग अलग बने हैं, एक साथ नहीं है, इसलिए डाइमिथाइल नहीं आएगा। क्लियर? यस सर, अंडरस्टूड, थैंक यू। So now, how to represent this? This cleavage is always represented by, देखो एरो कैसा है, आधा ही एरो है, so it is called as half curved arrow. It is always represented by half curved arrow, or it is also called as fish hook arrow. जो मच्छी पकड़ने का गल होता है ना, वो ऐसे ही होता है, देखा होगा किसी ने फिशिंग करते वक्त, when you catch the fish, इसको मराठी में गल बोलते हैं, मच्छी पकड़ने की गल, इसको हम लोग बोलते हैं, that side is called as fish hook arrow, or it is also called as half curved arrow. So homolytic fission is always represented by half curved arrow. So if you have written this definition, I'll write the points. I'll clean the board and write the points. सर प्लीज वेट 1 मिनट। Yes. लास्ट वाला लिख रहा हूँ सर। हाँ मैं ऊपर का ही लिख रहा हूँ, नीचे का so cleavage is represented by what? By half curved arrow. That is fish hook arrow. That is fish hook arrow. फिर क्या बोला था मैंने, ये जो होते हैं, स्टोरी बता देते आपको सिंपल बादशाह में याद करने के लिए। अभी देखो CH में ना, तुम्हारे जैसे कॉलेज के दो दोस्त हैं, दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग है। कौन सी बॉन्डिंग है? दोस्ती की बॉन्डिंग है, ठीक है। बट कोई आ गया उनके बीच, दोनों की दोस्ती के बीच में, और उनमें झगड़ा लगा दिया, दोनों अलग अलग हो गए, और दुश्मनी हो गई, मुझे उसका चेहरा ही नहीं देखना है, ठीक है। ये क्या बोलता है? तेरे से बहुत देखे मैंने, ये बोलता है तेरे से बहुत देखे मैंने, देख तेरे से भी अच्छा दोस्त मैं लेके आऊंगा। क्या बोलता है? तेरे से भी अच्छा दोस्त मुझे मिलेगा, ऐसे वो बोलता है। ये कॉलेज में हमेशा होता है, ये आपको बहुत पता है। तो उस जुनून में, उस जिगर पे फटाफट नया दोस्त ढूंढता है, क्योंकि ये सिंगल है, अकेला ही है, इसके पास कोई पार्टनर नहीं है, इसको जरूरत है कि मेरे साथ कोई पार्टनर रहे, कुछ रहे। दैट्स व्हाई ये फटाफट दोस्त ढूंढ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्लीवेज ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस, free radicals generate and free radicals react very quickly, so they are highly reactive in nature, and इसलिए हाईली रिएक्टिव है तो फटाफट रिएक्ट करेंगे, जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो मुझे मार्केट में ढूंढना है दोस्त कौन से फटाफट अच्छे, तो अच्छे दोस्त पकड़ लूंगा मैं, नहीं तो क्या होगा? दोस्त खत्म हो जाएंगे, फिर मुझे मिलेंगे नहीं मेरे दोस्त, वो सब दूसरे दोस्ती करेंगे। तो इसका ऐसे याद रखना है। ये कैसे? ये याद रखना है कि आप लोग जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, दे आर जस्ट grown up students, just now they are grown up, they cross their adolescence and adult to adult। तो बहुत नया खून होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, इनमें गर्म खून है, तो ये तो बॉन्ड ब्रेक होता है, दोनों के पास, दोनों अलग अलग हो जाते हैं।
अलग अलग हो जाते हैं, मन में बहुत गुस्सा भरा हुआ है, कुछ भी करो, मुझे फटाफट नया दोस्त बनाना है, मैं दिखाना है कि मैं इस कॉलेज का हीरो हूं, मैं अच्छे अच्छे दोस्त बना सकता हूं, तो उस चक्कर में क्या करता है, फटाफट रिएक्ट कर देता है, और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, highly reactive in nature. So what to remember? Free radicals are short-lived and highly reactive. तो इनका लाइफ स्पेन बहुत कम है, थोड़ी देर के लिए होते हैं क्योंकि फटाफट कंबाइन हो जाते हैं, तो शॉर्ट लिव्ड एंड हाईली रिएक्टिव इन नेचर. इनकी दोस्ती तोड़ने वाला कौन कौन है देखते हैं. Who breaks up, मतलब किसके प्रेजेंस में होगा. This fission takes place in presence of, कौन कौन है, सबसे पहला यूवी लाइट, फिर सनलाइट, peroxide. You can take any peroxide, hydrogen peroxide, sodium peroxide, कोई भी peroxide ले सकते हैं, या फिर suitable catalyst, non-polar solvent. Reaction is carried out in presence of non-polar solvent. That's why this reaction is also called as non-polar reactions. Clear? Or at high temperature. तो क्या है, जवानी का जोश है, गरम खून है, कोई भी दोस्ती तोड़ सकता है. बहुत से फैक्टर्स है, 6 फैक्टर्स है, 6 में से कोई भी इनका दोस्ती फटाक से तोड़ सकता है. ठीक है, आगे बढ़ूं. Yes. Yes. Okay, 2 minutes I'll give you. Note down, then I'll move further. This fission takes place in presence of, मतलब जो फिशन करना है किसके किसके प्रेजेंस में हो सकता है, either in presence of UV light, sunlight, peroxide or any other suitable catalyst, non-polar solvent and what, and is high temperature. मतलब ये फैक्टर्स अगर प्रेजेंट है तो इन फैक्टर्स में कोवेलेंट बॉन्ड will undergo cleavage and result in what, formation of free radical, result in formation of what, free radical. So now I'll move to the second fission, that is heterolytic fission. So heterolytic fission just इसका ऑपोजिट है. पहले क्या था वर्ड, द सिमेट्रिकल फिशन, तो अब आ जाएगा द अनसिमेट्रिकल फिशन आ जाएगा. So now we'll go to the next topic. काय अभिषेक आहे ना वाटतं, उद्या आहे वाटतं, उद्या किंवा परवा, उद्या आहे उद्या. आज रविवार आहे ना, आज शनिवार आहे. अरे आप साथ बोलू नका. The unsymmetrical cleavage
a covalent bond in presence of polar solvent. In presence of polar solvent takes place in such a way that more electronegative species takes the shared pair of electrons. It's the shared pair of electrons. तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा वो शेयर पेयर लेके जाएगा. Also called electrolysis polar reaction या ionic reaction. Yes, Ashley, what happened? Yes. Done. Yes. Done, sir. Done, sir. No, sir. Okay. So it's also called hydrolysis, polar reaction, or ionic reaction. Okay. So let us see. So take the same presentation A and B. इनके बीच में क्या है? एक कोवलेंट बॉन्ड है. And if I take in presence of what? Polar solvent. The question is कि क्या ये polar solvent break कर सकता है? Yes. If polar solvent is a stronger one, then it can break the covalent bond. Yes. तोड़ सकता है. It can break the covalent bond. अब covalent bond कैसे टूटेगा? क्योंकि ये खुद ही पोलर है ना, प्लस माइनस, तो यहां पर ब्रेकिंग भी प्लस माइनस होगा. तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा. तो A और यहां पर B माइनस A प्लस है तो कैटायन एग्जाम्पल निकालो, हमारे से समझ में आ जाएगा. इफ आई टेक दिस सेंस CH3 here methyl chloride, so I will not this is a covalent bond between them. CH3
Cl in presence of what? Polar solvent. It can go towards B or it can go towards A. Either one. Which of them is electronegative? That's why I will explain this example. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखो A और B दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है. हम लोग जनरल दिखा रहे हैं. अगर B इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स B लेके जाएगा. अगर A इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो A के पास जाएगा. उस CH3Cl. अब हमको इसमें पता है कि कार्बन, आंसर देता हूं मैं एक्चुअली 1 मिनट. कार्बन और क्लोरीन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? क्लोरीन. क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर्ड टू कार्बन. दैट्स व्हाई क्लोरीन विल टेक द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Chlorine will take the shared pair of electrons, and if the answer is filled, CH3 and Cl will have the shared pair of electrons. तो Cl extra electrons लेके गया, इसके लिए माइनस चार्ज. कार्बन के पास नहीं आया, इसलिए प्लस चार्ज. So this is methyl cation chloride anion. Okay, your doubt, let us see. कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4. 1 2 3 4. Stop writing everybody and look here. Carbon is having how many electrons? 4 electrons. कार्बन के साथ में कौन है? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1. तो एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गया, कार्बन भी सेटिस्फाई हो गया. कार्बन सेटिस्फाई नहीं हुआ. कार्बन इज हैविंग 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स yet. Now who enters? Chlorine. And we are familiar, chlorine is having how many electrons outermost shell? 7 electrons. कितने इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन के पास? 7 ना. 2, 8, 7. So we show here 1 2 3 4 5 6 and 1 7. Chlorine is having 1 electrons, तो कितना हो गया? 7. तो अभी क्लोरीन की 2 4 6 7. क्लोरीन क्या करेगा? इससे दोस्ती करेगा तो 8 हो जाएगा. कार्बन भी इससे दोस्ती करेगा, 8 हो जाएगा. मतलब दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो दोनों का काम हो जाएगा 8. तो स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा? इस तरह से देखो. As you can see here is 2 4 6 8 2 4 6 8. So कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हो गए. बट हुआ क्या? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है दे बिकम कॉमन इलेक्ट्रॉन्स. So they are called as shared pair of electrons. They are called as common electrons or they also called as shared pair of electrons. इसीलिए जब भी बॉन्ड का क्लीवेज होगा 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ना, क्योंकि 2 कॉमन में है, बाकी जो अनकॉमन है वो नहीं जाएंगे. बॉन्ड किसकी वजह से बना? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बना. तो क्लीवेज भी किसकी वजह से होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा ना. इसलिए क्या होगा? तो जो शेयर हुए इलेक्ट्रॉन्स वही जाएंगे, जो शेयर नहीं हुए वो तो खुद के पास ही रहेंगे. क्लियर्ड? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. जो मैंने वो एग्जांपल लिया था कॉलेज वाला, वैसा एग्जांपल लेके बताता हूं तो आपको और बेटर समझ में आएगा. ठीक है? हस्बैंड एंड वाइफ. हस्बैंड एंड वाइफ. हस्बैंड ने वो दहेज वहेज देते ना, थोड़ा हस्बैंड ने दिया और थोड़ा वाइफ लेके भी आई है. ठीक है? वाइफ भी लेके आई है और हस्बैंड ने भी थोड़ा बहुत खर्चा किया. हम लोग देते ना लड़की लोगों को पहले कुछ देते, सोना वोना पहन के आती है, और वो अपने मायके से भी बहुत लेके आई है. आपने देखा होगा हंगामा पिक्चर. हंगामा पिक्चर में वो परेश रावल और वो जो परेश रावल के ऑपोजिट में रहती है अंजलि जिसका नाम रहता है, तो उसमें जब भी वो बोलता है ना मुझे डिवोर्स चाहिए, तो वो उसकी वाइफ क्या बोलती है? मैं अपने मायके से 2 डिक्की सोना भर के लेके आई हूँ, वापस दो तभी जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाने वाली.
तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये क्या हो जाता है, हस्बैंड वाइफ है बोथ, और दोनों ने क्या किया है, कुछ कुछ पैसा अपना लेके आए और उन्होंने यहाँ पर चलाया है। थोड़े साल तो चला, पर यहाँ पर उनकी जिंदगी में कौन आ गया, पति पत्नी और वो, मतलब क्या आ गया, पोलार सॉल्वेंट आ गया। नाउ दिस पोलार सॉल्वेंट ये क्या करेगा, इनके रिलेशनशिप को ब्रेक करना चाहता है, तो आग लगा दी, इस आग में ही फंस गया। तो ये वाइफ जो है बहुत शानी थी, बहुत एक्सपर्ट थी, वो बोलती है मैं अपना पैसा लेके वापस निकल जाऊंगी। तो वो क्या करती है, खुद का तो पैसा लेती है और इससे जो पैसे दिए थे इसको वो भी लेके निकल जाती है। इट टेक्स द इलेक्ट्रॉन्स, और बेचारा ये हस्बैंड अकेला रह जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं है, खुद का पैसा भी गया, वाइफ भी गई। मतलब क्लोरीन ने क्या किया, खुद का इलेक्ट्रॉन लेके गया, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर में आया था, शेयर्ड पेयर से दैट इलेक्ट्रॉन आल्सो इट हैज टेकन। ओके, नाउ व्हाट, नाउ इसके पास पैसा भी है और सिंगल भी है, सो इट विल गेट मैरिड टू विच पर्सन, जिसके पास पैसा कम होगा, क्योंकि ज्यादा पैसे वाले के साथ करेंगे तो वैल्यू नहीं रहेगी, सो इट विल गो विद, क्योंकि इसके पास बहुत पैसा है, हायर इलेक्ट्रॉन्स, मोर इलेक्ट्रॉन्स, सो इट विल अट्रैक्ट विद विच, विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, लेसर इलेक्ट्रॉन्स। सो लेसर इलेक्ट्रॉन्स मतलब प्लस चार्ज वाले के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो वो सोचेगा ना मैं किसके साथ कंबाइन हूं, तो टाइम लगेगा, इसलिए रिएक्शन कैसे हो जाएगा, स्लो। इसके पास प्लस चार्ज है, पैसा ही नहीं है, तो इट विल गेट लिंक विथ व्हाट, विथ इलेक्ट्रॉन रिच, हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें भी ढूंढने में टाइम लगेगा, सो दैट्स व्हाई कंबाइन तो होगा, स्टेबल होना ही है, बट व्हाट, टाइम लगेगा। सो दिस इज अ स्लो रिएक्शन, दे आर मोर स्टेबल as compared to free radicals, they are more stable as compared to free radicals, and they are less reactive in nature. Clear? And Yes, sir. यहाँ पर पूरा एरो दिखाया है, दोनों देखो, दोनों एरोस है, पहले कैसे था, एक ही एरो था, आधा ही एरो था, अभी पूरा एरो। If you have any still doubt, please ask, because this is the small topics which are going to be in your further एंट्रेंस पार्ट में ऐसे आएंगे क्वेश्चंस, तो आपको एक छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझने चाहिए। इस चैप्टर में, चैप्टर का नाम ही बेसिक है ना, बेसिक प्रिंसिपल्स, तो इन दिस चैप्टर वी विल टीच यू स्मॉल बेसिक प्रिंसिपल्स, तो दिस आर ऑल द बेसिक प्रिंसिपल, इसलिए मैं इतने एग्जांपल्स लेके आपको बता रहा हूँ, इसमें अभी तक आपको बहुत कुछ पढ़ना है, देखते हैं। सो व्हाट द रिजल्टिंग species are cation and anion, that is ions. They are less reactive and more stable than free radicals. Fission is shown by curved arrow. तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उसके पास हेड, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उसके पास टेल। सर यहाँ का एरो ही यूज करते हैं ना? यस यस, यहाँ भी हाफ कर्व एरो ही यूज करते हैं ना? थिक कर्व, देखो ये टर्न मार दिया ना, तो ये कर्व और ये पूरा एरो हो गया ना, हाफ कर्व किसको बोलेंगे, ये कर्व और ये ऐसे, इसको हाफ कर्व, इसको कर्व, ठीक है। ओके सर, थैंक यू।
Cl के पास इलेक्ट्रॉन्स तो आ गए, बट चार्ज आ गया ना, माइनस चार्ज आ गया है। तो अभी उसके पास माइनस चार्ज आ गया, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो माइनस चार्ज किसी को डोनेट करेगा। Cl के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गया, बराबर ही है, बट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद वो बॉन्ड बनना चाहिए ना, बॉन्ड नहीं बनेगा तो स्टेबल नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई Cl के पास चार्ज क्या है, माइनस चार्ज है अभी तक, उसको माइनस को नलीफाई करना पड़ेगा, तो वो किसी साथ नलीफाई कर सकता है विद पॉजिटिव के चार्ज, देन ओनली इट विल बिकम स्टेबल। या तो फिर वो देखो ऐसे Cl माइनस और एक और Cl माइनस का बॉन्ड बनाएगा, तो वो Cl2 हो सकता है, आइदर दैट वे और विद सम अनदर, तो वो उसके साथ कंबाइन होना ही पड़ेगा जिसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। हाँ, यू सही दैट, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो बराबर ही है, इसके पास Cl के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दैट इज करेक्ट, बट चार्ज भी तो रह गया है, तो चार्ज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वर्ड क्या लिखा है यहाँ पर, क्लोराइड अनायन, इट इज आयन फॉर्म, हमें इसे स्टिल स्टेबल फॉर्म में करना है, दैट्स व्हाई इट विल रिएक्ट। क्लियर? सो प्लीज रिवाइज दिस टॉपिक। मैंने एक ही टॉपिक लिया है, एक्चुअली ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट्स का ही था, बट आई हैव गिवन यू 1 hour फॉर दिस। प्लीज रिवाइज दिस टॉपिक वेरी क्लियरली। सर यस, वो क्लोरीन वाले एनायन को कैसे स्टेबल करेंगे? माइनस चार्ज है ना उसके पास, तो वो प्लस के साथ कंबाइन होगा, जैसे Na प्लस या Cl के साथ में जाएगा, वो किसी Cl के साथ में, या फिर किसी अल्काइल ग्रुप के साथ में जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उसको अपना माइनस चार्ज दे देगा और वो स्टेबल हो जाएगा। ओके सर। इट विल रिएक्ट ओनली विद द स्पीसीज व्हिच इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, और किसी साथ कंबाइन नहीं हो सकता है वो, क्योंकि उसके पास माइनस चार्ज है ना, तो उसको आयनिक बॉन्ड प्लस वाले के बनाएगा साथ ही कंबाइन होगा, तो ही स्टेबल होगा। आयनिक बॉन्ड बनाएगा ना वो? यस सर हाँ, कैटायन जो है उसको जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? कटायन जो है वो नहीं क्या किसी के साथ ये करेगा? रिएक्ट करेगा ही ना, जो CH3 प्लस है वो माइनस वाले के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसको भी तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो, हाँ बराबर ना? हाँ, तो वो भी बॉन्ड बनाएगा ना? Yes, it will also form bonds. This both are, cation and anion both are less stable. They are less stable है, तो रिएक्शन करना उनको बनता ही है, वो लोग किसी ना किसी साथ कंबाइन होंगे, बट इनको रिस्ट्रिक्शंस है। क्या रिस्ट्रिक्शंस है? प्लस चार्ज है, तो इट विल रिएक्ट ओनली विद माइनस चार्ज, एंड ये माइनस चार्ज है, इट विल रिएक्ट विद प्लस चार्ज ओनली, या फिर एक और Cl के साथ ऐसे रिएक्ट करें, तो ही वो कंपाउंड बनेगा, तो ही वो स्टेबल होगा। थैंक यू सर। So one more topic we'll study. Let's see. इसी से रिलेटेड करते हैं। Before I move the topic, I have taught you Lewis acid and Lewis base. Who will answer what is Lewis acid and Lewis base? What is Lewis acid and Lewis base? Anybody remembers? Substance which is electron deficient and electron acceptor, they may be positively positive. charged. Example Which is of neutral ions. Correct answer. Everybody correct. Very good. So our next topic is reagent. Our next topic is reagent. What do you mean by reagent? Reagent are attacking species. जो अटैक करते हैं वो हो जाते हैं रिएजेंट, और जिस पे अटैक होता है वो हो जाता है सबस्ट्रेट। The species which attack are called reagents
and on whom the attack takes place is called as substrate. Suppose you have my pass CH3Cl plus CH3Cl है और हाइड्रोलाइड इस पर हम लोग रिएक्ट करते हैं AgOH का या फिर NaOH का लेते हैं। तो NaOH का, तो ये यहां से जो OH माइनस आयंस है वो क्या करेगा, CH3 पर अटैक करेगा। OH माइनस आयंस जो है CH3 पर अटैक करेगा, तो दिस इज अटैकिंग, सो दिस इज कॉल्ड एज रीएजेंट। और अटैक कहां पर हो रहा है, CH3Cl पर, दैट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट। सो डेफिनेशन क्या हो गया रिएजेंट का, द स्पीसीज ऑन विच अटैक is done, species on which attack is done is called as substrate, and the species which attacks, जो मारता है, जो अटैक करता है, that is called as reagent. So we are having two types of reagents. They are electrophile and nucleophile. There are two types of reagent, electrophile and nucleophile. Nucleo. Electrophile means what? Electro, दो वर्ड है और एक file. So electro comes from the word electron and file comes from the word loving, या फिर love भी लिख सकते हैं। सेम यहां पर न्यूक्लियो एंड फाइल। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियॉन्स और न्यूक्लियस। न्यूक्लियो को न्यूक्लियॉन्स या न्यूक्लियस दोनों लिख सकते हैं। फाइल मीन्स लविंग। सो इलेक्ट्रोफाइल, they are electron loving species. हम किस चीज को लव करते हैं, हमारा अट्रैक्शन किस चीज के लिए होता है, जो चीज हमारे पास नहीं है या फिर कम है। जैसे मेरा अट्रैक्शन महंगी महंगी कार की तरफ होता है, स्पोर्ट्स कार या बहुत अच्छी अच्छी कार्स या बाइक्स पर होता है, तो उधर मैं देखता हूं तो मेरा अट्रैक्ट हो जाता हूं, अरे यार ये कार मेरे पास होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सो वी आर अट्रैक्टेड। गर्ल्स आर स्पेशली अट्रैक्टेड टू नाइस ड्रेसेस, सुंदर सुंदर ड्रेसेस, so they are always attracted. So to what things we are attracted? The things which we do not have. यहां पर भी electrophile, they are electron loving. इसका मतलब इनके पास क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन, They are electron deficient. नहीं है, नहीं मतलब deficient, या फिर हम इसको और क्या लिख सकते हैं, they are having less electrons. यहां पर न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्लस चार्ज होता है ना, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, प्लस चार्ज। सो ये प्लस चार्ज को लव करता है, तो प्लस चार्ज को लव करता है मतलब इनके पास चार्ज कौन सा है, माइनस, और माइनस चार्ज किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। दे आर, इलेक्ट्रॉन का सिंबल E माइनस लिखता हूं, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, that is they have more electrons, they have more electrons. Now can you see me out of this two which is Lewis acid and which is Lewis base?
चलो उसके पहले मैं बता देता हूं, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कम है तो एक करेंगे, कम है तो लेंगे ना, सो दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, कम है तो ऑफकोर्स एक्सेप्ट करेंगे, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, donate. दे आर electron donors. So species which are electron acceptors are called as इलेक्ट्रोफाइल, electrophile, or they also called as Lewis acids. So they are electron acceptors, electrophile है ही, and they are Lewis acid. Lewis acid, and they are electron donors. So therefore they are Lewis base. तो इलेक्ट्रॉन्स जो डोनेट करते हैं वो बेस हो जाते हैं, और जो एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड हो जाते हैं। तो ये किधर अटैक करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, तो कहां पर अटैक करेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, बराबर है। सो दे विल अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, क्योंकि इनके पास क्या है, डेफिशिएंट है, कमी है, कम है तो अटैक करेंगे कहां पर, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और ये लोग क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये कहां पर अटैक करेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम रहेगा, अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स। करेक्ट। अब चार्ज, चार्ज कौन सा है इसमें, दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब ये माइनस चार्ज को लव करता है, तो खुद के पास चार्ज कौन सा होगा, प्लस चार्ज, सो दे आर पॉजिटिव और न्यूट्रल, पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल, यहां पर ये कैसे, न्यूक्लियस लविंग है, न्यूक्लियस मतलब प्लस चार्ज को लव करता है, न्यूक्लियस मतलब प्लस चार्ज, तो खुद के पास चार्ज कौन सा है, माइनस, सो दे आर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। अब एग्जाम्पल, पॉजिटिवली चार्ज में एग्जाम्पल कैसे आ जाएंगे, यहां पर H प्लस, reagents never attacked on each other, reagent always attacked on the substrate, reagent never attack on each other, they always attack on the substrate. सर सिक्स क्या है सर, 7वां क्या है, दे आर पॉजिटिवली They are चार्ज, positively charged or neutral. They are positively charged or neutral. एग्जांपल एक्झाम्पल देतोय, कारण जागा भरली ना, मी वरचं क्लिक करतो थोडंसं, तुम्ही लिहा. ठीक आहे. Sir, please wait 1 minute. I am writing 6 point. सर अगर ये रिएक्ट करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, Yes. अगर ये रिएक्ट करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, दोनों रिएजेंट है ना, तो दोनों सेम है, दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे, ये हमेशा सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्ट करेंगे. ओके So H plus, NO plus,
Yeah. Cn minus OH minus ये दो एग्जांपल लिखो अभी न्यूट्रल वाला एग्जांपल दिखाता हूं आपको Al ये मैंने आपको लुईस एसिड पढ़ाते वक्त बताया था AlCl3 Al ये आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 1 2 3 Al is having 3 electrons outermost shell and chlorine is having 7 electrons. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah. So you can तो 8 electrons हो गए. Sir, Yes. you can light little bit big, sir. I can't see properly. That's Yes, why. it's a lighter bigger. Aluminium is having 3 electrons in outermost shell. सर सर वो नीचे के पॉइंट्स रफ करो ना सर वो मिक्सिंग दिख रहा नहीं है बराबर ये आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्लोरीन ये आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सो 1 2 3 4 5 6 7 नेक्स्ट क्लोरीन सो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के आ गए और 1 इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम का आ गया तो AlCl3 और कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्लोरीन के पास 8 क्लोरीन 8 now look at the aluminium has how many electrons 6 electrons so होना कितना चाहिए था 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए पर इसके पास ऑक्टेट नहीं है 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन लविंग इसका ये एग्जांपल किसका हो गया इलेक्ट्रोफाइल AlCl3 is इलेक्ट्रोफाइल so in short elements of group 13 ये एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 कौन से बाल गंगाधर इंडियन तिलक भी है नीचे but especially these 3 elements will form electron deficient species ये यहाँ पर आ जाते हैं what is atomic number of oxygen atomic number of oxygen 8 so electronic configuration becomes 2,6 so oxygen is having how many electrons of valence shell 4 5 6 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है अब एक एक हाइड्रोजन आएगा एक हाइड्रोजन इधर से एक हाइड्रोजन इधर से क्या बन गया H2O तो हाइड्रोजन वांट्स डुप्लेट हाइड्रोजन का काम हो गया बराबर है तो स्टेबल हो गया तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ऊपर के 2 और नीचे के 2 इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया अगेन आई रिपीट
Oxygen is having 6 electrons and hydrogen 1 electron. So एक हाइड्रोजन आया, उसने ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया. Second oxygen, it forms a bond with 1 more electrons. So it forms what? H2O. And we are familiar, H2O is a stable compound. But this electrons has not participated in bond formation. So they are called as extra electrons. So we say that they are having more electrons to water molecule. That's why they are electron rich and hence it is a nucleophile. So H2O. So this electrons has participated in bond formation. Therefore, these electrons are called as bond pair. But this electrons did not take part in bond formation. Therefore, they are called as lone pair. अकेला रह गया. Pair मतलब जोड़ी, दो. Lone मतलब did not participate. So there are, क्या बोलेंगे हम? There are 2 lone pair of electrons in water. एक और चीज एग्जांपल दिखाते हैं. Nitrogen. How many electrons are present in outermost shell of nitrogen? Come on. 5. 5 electrons, correct? So 1, 2, 3, 4, 5. And now one hydrogen attacks. So एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर. क्या फॉर्मूला बन गया? NH3. एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड हो गया. But this electrons did not participate in bond formation and hence remains extra. So this is नाइट्रोजन तो 7 है ना? हाँ? नाइट्रोजन तो 7 है, एटॉमिक नंबर 7. नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, but इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन 2,5 ना? ओके. आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन्स. कौन 5 आपको ले? 1 2 3 4 5. क्लियर? यस. इलेक्ट्रॉन्स कौन से रिएक्ट करते हैं? जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं वो ना? वैलेंट बराबर ना? बैलेंस इलेक्ट्रॉन. हाँ, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट करेंगे. तो 5 में से भी कौन रिएक्ट कर रहे हैं? सिर्फ 3 ही रिएक्ट कर रहे हैं. 2 3 ये रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे बॉन्ड फॉर्मेशन में. तो इसका मतलब क्या हो गया? दे आर कॉल्ड एज लोन पेयर. एंड नाइट्रोजन आल्सो अंडरगोइंग व्हाट? सीधा एग्जांपल बताता हूं मैं. अभी तो आप कॉलेज जाओगे तब आपका नया क्लास रहेगा और है ना, एक हफ्ते तक कॉलेज गए हैं तो बहुत से बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत इंटरएक्टिव होते हैं. तो वो क्या करते हैं? सबसे दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि उस कॉलेज में पालघर में जो 8-10 स्कूल है, सब स्कूल से बच्चे आएंगे. बोईसर, मनोर, वाड़ा, कई से बच्चे आते हैं, सफाला, केलवा. तो हम सबके साथ मिक्स हो जाते हैं. बट 2 बच्चे ऐसे हैं क्लास में, वो क्लास में तो आते हैं, वो वहां पर बैठते बेंच में, पूरा लेक्चर करते निकल जाते. मतलब किसी के लेना है ना देना है, बट दे आर प्रेजेंट इन द क्लास, बट दे आर नॉट टॉकिंग टू एनीबॉडी, दे आर नॉट मिक्सिंग. सेम हैपेंस हियर. Nitrogen is having 5 electrons outermost shells. 3 are interactive, but these 2 electrons are not interactive, but they are present. So such electrons are called as lone pairs. Clear? And they are extra electrons. And hence, मतलब extra electrons से मतलब ये क्या हो गया? Electron rich हो गया. Electron rich है, that's why they are called as what? Nucleophiles. Clear? यस सर. तो स्पेशली कौन से एलिमेंट्स बनाएंगे न्यूक्लियोफाइल्स? ऑक्सीजन फैमिली एंड नाइट्रोजन फैमिली. मतलब ऑक्सीजन में से, ऑक्सीजन ग्रुप वाला. मेरी स्टाइल में कैसे लर्न करना है? ओस से टेको, ओस से टेको. तो पहले 3 एलिमेंट्स बहुत अच्छा दिखाएंगे, ओस से टेको. या फिर ये नाइट्रोजन वाला लिखा है ना, नाइट्रोजन फैमिली. नॉटी, पति, एसिड, सबकी बीवी. तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक, दे विल शो वेरी गुड दिस. ठीक है?
So these elements generally form electron-rich nucleophiles. So you revise these two topics at home. Again, if you're having any doubts, please ask. तो इसमें मुझे एक कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन पढ़ाना है, फिर उसके बाद शॉर्ट में करके चलेंगे अगेन. थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू ऑल, टेक केयर, बाय. बाय सर. Bye, sir. बाय. सर यस, सर ये जो न्यूक्लियोफाइल में जो हो गए वो सब बीज ही बनाएंगे ना? न्यूक्लियोफाइल हो गए तो वो सब बीज ही हो गए ना? हाँ, लगभग वैसे हो गया. हाँ, यस सर, थैंक यू सर, बाय सर. बाय बाय. बाय सर. बाय. इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग. Bye, sir. Thank you, sir. हाँ, बाय. हार्दिक, अजून काय पाहिजे? म्हणजे तुला न्यूट्रलचं पाहिजे का प्लस चार्ज मध्ये पाहिजे हार्दिक? सर अजून एक याच्यात दाखवा ना, इलेक्ट्रोफाइलचा एक. इलेक्ट्रोफाइल म्हणजे चार्ज वाला पाहिजे का न्यूट्रल पाहिजे ते विचारत होता. सर तुम्ही आता नाही का दाखवलं ते NH3 आणि हा, तसं ना दाखवतो, ठीक आहे. इलेक्ट्रोफाइलचं एक हा हा, ठीक आहे, ठीक आहे. AlCl3. हे बघ, हे काय लिहिलंय? BF3 लिहितोय. बोरॉन, बोरॉनचा ऍटॉमिक नंबर किती आहे? 5. बोरॉनचा ऍटॉमिक नंबर 5. त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं करणार? 2,3. तर बोरॉनच्या आउटर मोस्ट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन झाले? 3. 1 2 3. बरोबर आहे. आता आला फ्लोरीन. फ्लोरीन म्हणजे 9. तर 2,7. त्याच्याकडे 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो आपण इथे लगा देते क्लोरीन. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक आहे. आता तर हे झालं फ्लोरीनचे 8, फ्लोरीनचे 8 आणि फ्लोरीनचे 8. पण बोरॉनचे किती झाले? 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स. म्हणून हा बोरॉन काय झाला? इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट. 6 आहे ना त्याच्याकडे. 2 4 6. त्याला किती गरज आहे? 2 ची अजून गरज आहे 8 व्हायला. म्हणून तो गरज आहे, म्हणजे तो डेफिशियंट आहे. डेफिशियंट आहे म्हणजे काय झालं? तो इलेक्ट्रोफाइल. ठीक आहे हार्दिक? ओके, टाटा, बाय बाय. बाय सर. बाय हिरेन सर, बाय चिराग सर, बाय महेंद्र सर. चिराग सर, हिरेन सर, Mahendra sir, bye. Bye. Wish you happy Independence Day. Same to you, sir. Bye bye, students. Students, please give your feedback for the lecture. Students, today's lecture you had listened me. So please give the feedback also. अगर मुझे देना है तो मुझे दे सकते हो आप, ग्रुप में देना है ग्रुप में, या फिर चिराग सर और